Hi everyone, welcome back to my channel. Today we're going to know about the modern rules of accounting. Now some of you might be thinking, when we already have golden rules of accounting, is it really necessary to have modern rules of accounting? क्या ये modern rule golden rule से भी ज़्यादा difficult हैं? Whenever we hear about golden rules of accounting, the three things that immediately strike our mind is real account, nominal account and personal accounts and their nature, जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सारी चीज़ें. लेकिन अक्सर क्या होता है, वी बिकम लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज्ड कि ये रियल अकाउंट्स क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट्स क्या है. तो इस कन्फ्यूजन के चक्कर में क्या होता है, कई बार हमारी जर्नल एंट्रीज गलत हो जाती है. व्हेन आवर जर्नल एंट्रीज बिकम्स रॉन्ग, देन आवर लेजर पोस्टिंग भी गलत हो जाती है. और लेजर पोस्टिंग गलत होना मतलब पूरी की पूरी अकाउंटिंग गलत होना. तो ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए the modern rules of accounting has come up. This modern rule of accounting will ease your job of passing the journal entries. ये modern rule से आप अपने journal entries बहुत आसानी से और सही तरीके से पास कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं आज modern rules of accounting. As per the modern rules of accounting, we have 5 components, which I will be saying as 5 components of accounting. अगर ये 5 कंपोनेंट्स के बारे में आप सही से जान ले, उनके नेचर के बारे में आप सही से जान ले, तो आपकी जर्नल एंट्रीज कभी भी गलत नहीं हो सकती हैं. तो चलिए जानते हैं हमारे इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में. वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड दीज आर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. अकाउंटिंग 2 ही चीज़ों से चलती है, एक होता है आपका डेबिट और दूसरी होती है आपकी क्रेडिट. चलिए जानते हैं हमारे ये कंपोनेंट्स के नेचर क्या हैं. आउट ऑफ द 5 कंपोनेंट्स दैट हैव मेंशन्ड अर्लियर, 3 ऑफ द कंपोनेंट्स हैव क्रेडिट नेचर एंड दीज आर लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम. एंड 2 ऑफ द कंपोनेंट्स हैव डेबिट नेचर एंड दीज आर एसेट एंड एक्सपेंसेस. If we remember the nature of these components, then it will be pretty much easier for us to pass any kind of journal entries. लेकिन क्या होता है, हम अक्सर इनके नेचर भी भूल जाते हैं, तो इससे हमारी जर्नल एंट्रीज तो गड़बड़ होनी ही है. सो टू ईज दिस प्रॉब्लम, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ स्मॉल सेंटेंस जिसे आप थोड़े से याद रखिए, जिससे आपका जर्नल एंट्रीज के नेचर के बारे में आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं. Let's see the sentence. So the sentence goes like this. When you say, "Come on, love, come in." And then what does love say? Don't expect anything. तो यहाँ पर C for come on stands for credit. L for love stands for liability. C for come stands for capital. And I for in stands for income. तो यहाँ पर आपके क्रेडिट नेचर हो जाता है आपके लाइबिलिटी, कैपिटल और आपके इनकम. और वहीं पर D for don't stands for debit, E for expect stands for expenses and A for anything stands for asset. तो आपके डेबिट नेचर हो जाते हैं आपके एक्सपेंसेस और एसेट. So now let's learn about the first component of our accounting, which is liability. So what is liability? Liability is your obligation to pay. If you have anything that has to be repaid, then that is your liability. अगर आपने किसी से सामान उधारी पे लिया हुआ है, अगर किसी ने आपको ऋण दिया है, तो वो होता है आपका लाइबिलिटी. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, बट टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओनली 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी. So the type of liability goes like this. First is your current liability, the second is your non-current liability, and the third is your contingent liability. Contingent liability के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. So what is current liability? Current liability is any liability that has to be repaid within 1 year. अगर आपने किसी से ऋण लिया है, सपोज जैसे मानिए आपने रमेश से ऋण लिया है, रमेश को आपको 1 महीने के अंदर रीपे करना है, तो रमेश बन जाता है आपके लिए करंट लाइबिलिटी. And what is non-current liability? Any liability that has to be repaid after 1 year means you are getting a tenure of more than 1 year. जैसे कि मानिए सपोज you have taken a loan from bank and bank has given you a tenure of 5 years, then that becomes your non-current liability. Or what is the nature of liability? Nature of liability is credit.
After knowing the details about liability, now let's know how to record this liability in your books of account. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, liability is of credit nature. तो an increase in liability is always credit and a decrease in liability is always debit. तो suppose for example, you have taken a loan of rupees 10,000 from Ramesh and you want to take an additional loan of rupees 2,000 from Ramesh. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Ramesh, which is your liability, is increasing by 2,000. So what will be the impact in your books of account? So your liability, that means your Ramesh account has to be credited further by 2,000. लेकिन वहीं पर सपोज आपने रमेश को 2,000 रुपीज रीपे कर दिया, तो आपका क्या होता है? Liability is your decreasing. So what will be the impact in your books of account? Since your liability is decreasing, तो Ramesh account has to be debited by 2,000 rupees. The next component of accounting that we got to know about is capital. What is capital? Capital is the contribution that the owner or the promoter makes to either start the business or to run the business. यानी सपोज से आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और आपने अपने पॉकेट से 5 लाख रुपए दिए हुए हैं ये बिजनेस को चलाने के लिए, तो ये 5 लाख रुपए होता है आपका कैपिटल. और व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैपिटल? Nature of capital is always credit. Now let's learn how to record entries related to capital in your books of account. So as हमने डिस्कस किया है कि capital is of credit nature, तो an increase in capital has always to be credited and a decrease in capital has to be always debited. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है इसको चलाने के लिए. सो दिस 5 lakhs इज योर कैपिटल एंड सपोज यू आर मेकिंग एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 lakhs. सो व्हाट इज हैपनिंग? योर कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय फर्दर 2 lakhs. सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट? सिंस योर कैपिटल इज इंक्रीजिंग बाय 2 lakhs, योर कैपिटल अकाउंट नीड्स टू बी फर्दर क्रेडिटेड बाय 2 lakhs. लेकिन वहीं पे सपोज ये केस अगर उल्टा होता, इफ यू हैड मेड अ ड्रॉइंग्स ऑफ 2 lakhs, दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग? योर कैपिटल इज डिक्रीजिंग बाय 2 lakhs. सो व्हाट वुड हैव बीन द एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट? सिंस योर कैपिटल इज डिक्रीजिंग, so your capital account has to be debited by 2 lakhs. The next component of our accounting that we got to know about is income. So what is income? Any revenue that is being generated out of our business activities is known as income. बिजनेस करते वक्त अगर हमारी बिजनेस को कोई भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है तो उसे हम इनकम कहते हैं. What is the nature of income? The nature of income is always credit. What are the types of income? The types of income is of basically 2 types. First is the operating and the second is of non-operating income. Operating income क्या होती है? The income that has been generated out of our business activities which is directly related to our business. That is our operating income. वहीं पर non-operating income क्या होता है? Any income that has been generated विदाउट आवर बिजनेस एक्टिविटीज, जिससे हमारी बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी बिजनेस को इनकम दे रही है. सपोज फॉर एग्जाम्पल से यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड नाउ यू आर रिसीविंग डिविडेंड, तो ये होता है डिविडेंड होता है आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ इनकम? सो एज इनकम इज बेसिकली ऑफ क्रेडिट नेचर, एनी इंक्रीज इन इनकम विल बी क्रेडिटेड. दैट मीन्स इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, सपोज आपका कोई भी इनकम इंक्रीज करता है तो वो खाता आपका क्रेडिट किया जाएगा. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर अकाउंटिंग दैट वी गॉट टू नो अबाउट इज एक्सपेंसेस. सो व्हाट इज एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस इज द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग टू जनरेट रेवेन्यू फॉर योर बिजनेस. बिजनेस में जो भी आप खर्चा करते हैं, किस लिए आप खर्चा कर रहे हैं? बिजनेस की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. तो ये खर्चा होता है आपका एक्सपेंसेस. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एंड द अदर इज नॉन ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस को रन करने के लिए जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? द एक्सपेंसेस दैट यू आर मेकिंग फॉर योर बिजनेस बट इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट. सपोज जैसे कि आपने टैक्स पेमेंट किया,
ये आपने अपने बिजनेस के लिए ही पेमेंट किया है, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है आपके इनकम जनरेट के लिए। तो दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंस? Nature of expenses is always debit. Now let's learn about how to record the entries regarding expenses. Now as expenses is of debit nature, so any increase in expense will be debited. That particular account will be debited. जैसे कि मानिए suppose I have paid insurance for my business. आपका expenses बढ़ा, आपका खर्चा हुआ, तो what will be the entry? Your insurance account will be debited. So the next and the last and the most important component of our accounting that we got to know about is asset. So what is asset? Asset is the resources that you own out of utilizing your sources of funds. अब ये sources of funds क्या है? Sources of funds is your capital and your liability. So if you are owning any resources by utilizing your funds from your capital and your liability, then that resource becomes your asset. जैसे कि मानिए सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीद लिया। बिल्डिंग कहाँ से खरीदेंगे आप? या फिर आप अपने ओन कंट्रीब्यूशन करेंगे या तो आप लोन लेंगे। लोन यानी आपका लाइबिलिटी हो जाता है और ओन कंट्रीब्यूशन माने आपका कैपिटल हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये सोर्सेस ऑफ फंड्स से आपने यूज किया और अपने लिए बनवाया एक बिल्डिंग अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सो दिस बिल्डिंग बिकम्स योर एसेट। द नेक्स्ट कम्स इज योर टाइप्स ऑफ एसेट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेट? एसेट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज टैंजिबल एंड द अदर इज इनटैंजिबल। इनटैंजिबल एसेट क्या होती है? जो एसेट जिन्हें आप छू नहीं सकते, लाइक योर गुडविल, योर रेपुटेशन, ये होता है आपके लिए इनटैंजिबल एसेट। एंड व्हाट आर द टैंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट होता है आपके लिए फिक्स्ड एसेट, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका करंट एसेट, ये सारी चीजें होती है आपके लिए टेंजिबल एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है? एसेट्स विच यू ओन फॉर मोर देन अ ईयर, जैसे कि सपोज बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, आपका प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीजें हो जाती है आपके लिए फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, सपोज से यू आर मेकिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक और सपोज यू आर बाइंग शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारी चीजें हो जाती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट आर द एसेट्स दैट यू कैन ओन फॉर मोर देन अ ईयर, जिन्हें आप एक साल के अंदर जिसका पैसा आपको मिल जाता है, विच गेट्स लिक्विडेटेड विद इन अ ईयर, दैट इज योर करंट एसेट। तो नेचर क्या है एसेट का? एसेट्स का नेचर ऑलवेज डेबिट होता है। Now how to record the entries of asset in your books of account? Now as asset is of debit nature, any increase in asset will be debited and any decrease in asset will always be credited. For example, suppose say you have a building of 5 lakhs and you are making an additional purchase of 2 lakhs. So what will be the entry in your books of accounts? Now since your building is further increasing by 2 lakhs, so your building account has to be debited by 2 lakhs. लेकिन वहीं पर सपोज केस अगर उल्टा हो जाता है, इफ यू आर सेलिंग बिल्डिंग ऑफ 2 lakhs, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? योर बिल्डिंग इज डिक्रीजिंग बाई 2 lakhs. सो व्हाट विल बी द एंट्री इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट? सिंस योर एसेट इज डिक्रीजिंग, सो योर बिल्डिंग हैज टू बी क्रेडिटेड बाय फर्दर 2 lakhs. The thing that you must remember before passing any entry is the nature of the components. If any credit nature item is increasing, then that particular account will be its nature. दैट मीन्स अगर कोई भी क्रेडिट नेचर आइटम आपका इंक्रीज करता है तो उसका नेचर क्या है? क्रेडिट नेचर आइटम का नेचर क्या है? ऑब्वियसली क्रेडिट है, तो दैट पर्टिकुलर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और वहीं पर अगर कोई भी क्रेडिट नेचर आइटम अगर डिक्रीज करती है तो उसका नेचर उसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि क्रेडिट नेचर आइटम का क्या है नेचर? क्रेडिट, तो उसका ऑपोजिट क्या है? डेबिट। तो यहीं पर अगर आपका क्रेडिट नेचर अकाउंट अगर आपका घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसका उल्टा क्या है? डेबिट। तो उसका वो पर्टिकुलर अकाउंट आपका डेबिट होगा। वहीं पर द सेम गोज बाय द डेबिट नेचर आइटम ऑल्सो। इफ एनी डेबिट नेचर अकाउंट इज इंक्रीजिंग, तो वो एंट्री आपकी उसकी जो नेचर है वही होगी। यानी इफ एनी पर्टिकुलर डेबिट नेचर अकाउंट इज इंक्रीजिंग, देन दैट पर्टिकुलर अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसका नेचर क्या है? डेबिट, तो इसलिए उसका डेबिट हुआ। वहीं पर अगर कोई भी डेबिट नेचर अकाउंट अगर घटती है, डिक्रीज होती है, तो उसका उल्टा होगा। उसका डेबिट नेचर आइटम का उल्टा क्या है? क्रेडिट है, तो दैट पर्टिकुलर अकाउंट विल बी credited.
So if you have liked the content, please like the video and share it with your friends, and subscribe to my channel for more such videos on banking and accounting. Thank you.